Hello friends, welcome back to my channel Learn Easy. This is the fifth part of the video of chapter 2 fractions and decimals which we are doing from NCERT mathematics textbook of class 7th. So this is the fifth part where we are solving exercise 2.5. If you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel for more updates. Also, if you haven't seen the previous exercise, please check the description box for the playlist of class 7 maths NCERT solutions, and please like and share the video with your friends. Let us begin with the very first question. Now we have started with the topic of decimals. Fractions was over till exercise 2.4. Now we have started exercise 2.5. Right. So first question says which one is greater? In order to determine which one is greater, how do we do these questions? 0.5 or 0. So first what I will do is I will compare the ones place. So 0 is equals to 0, right? Then the decimal remains the same. So 5 is equal to again 0. So obviously which one is greater? 5. So therefore here we will stop and we will write down therefore 0.5 is greater than 0.05. Understood? This is the thing which we do to compare the decimals. पहले हम place value से compare करेंगे, जहाँ पे digit बड़ी हो जाएंगी वहीं पे हम stop हो जाएंगे. So this you don't have to write. It's only for your understanding, right? It's only for your understanding. Let's move forward. So 0 is equals to 0, 0.7 and 5. So obviously 7 is greater. So therefore we will get that 0.7 is greater than 0.5. Right? Let's move to the third one. That is 7 or 0.7. That means 7 and 0. Obviously this is greater, so we will stop here. So therefore 7 is greater than 0.7. Right? Okay. Let us move forward to the next question. I hope everybody has understood. Then 1.37 और 1.49 कैसे करेंगे हम ये वाला क्वेश्चन? अगेन 1 सेम है, राइट? 3 and 4 में से बड़ा कौन सा है? 4. So where here we will stop and we will write that 1.37 is less than 1.49, right? So if I compare to the fifth one, that is 2 and 2 are same. 0 and 3 में से obviously 3 is greater, so that is 2.03 is less than 2.30. जहाँ पे जैसे ही नंबर बड़ा आ जाएगा हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे, राइट? नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट 0.8 and 0.88. So 0 and 0 same, point and point same, 8 and 8 same. So if we have no digit here, so it is assumed that it is 0. Obviously 0 is smaller than 8. So we will write that 0.8 is smaller than 0.88, right? So we have got the answers for the first question. Yes, let us move forward. Express as rupees using decimals. Now these types of questions are very important from examination point of view. They generally come in 2 markers and 4 markers, rather 3 markers also. So let us first understand that 1 rupee, yes, 1 rupee is equals to 100 पैसा. ये हमको पूरा clear होना चाहिए कि 1 rupee 100 पैसा के बराबर है. That means 7 पैसे, 7 पैसा को अगर हम कन्वर्ट करेंगे रुपी में, दैट मीन्स कैसे करेंगे इसको? अगर हमें 1 रुपी हमें पता है इज इक्वल्स टू 100 पैसा, बट वी डोंट नो हाउ मच रुपीज विल बी. सो 7 अपॉन 100 पैसा रुपी, सो दैट इज इट विल बिकम एज रुपी. दो डेसिमल के दो जीरोस है डिनोमिनेटर में, तो इट विल बिकम 0.07, राइट? कैसे किया हमने? हमको ये पता था कि डिनोमिनेटर में 2 जीरोस थी, तो डेसिमल 2 के बाद मूव कर गया टुवर्ड्स फ्रॉम द राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट. बात करती हूँ सेकंड पार्ट की. सेकंड में क्या है?
₹7.07। तो ऐसे में क्या होता है, ₹7 प्लस 7 पैसा होता है, तो ₹7 ऑलरेडी हमारे पास है, 7 पैसा मतलब 7/100 रुपीज। यही अभी हमने पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था, राइट। देन इट इज ₹7 प्लस, अब क्या हो जाएगा 0.07, सो इट विल बिकम ₹7.07 rupees, right? Is it clear? Okay, so these are very important things which all of you should understand. Let's come to the third part, 77 rupees, right? तो क्या आ जाएगा 77 rupees प्लस 77 पैसा। अगेन वी नो रुपीज हमारे पास कितना है, 77 ऑलरेडी है, पैसे को कन्वर्ट करेंगे रुपीज में, इट विल बिकम 77/100। अब देखिए यहाँ पे पहले तक अभी तक हमारे पास दो ही सिंगल डिजिट थी, तो हमने 2 प्लेस डेसिमल मूव किया, अब यहाँ पे 2 आ गई, तो इट विल बिकम 0.77। So the answer here after adding we will get 77.77 rupees, right? Is it clear? I repeat, as we all know that 1 rupee is equals to 100 पैसा, right? तो हमने 7 पैसे को कन्वर्ट किया, फिर 7 rupees 7 पैसे को कन्वर्ट किया, then we have done 77 rupees and 77 पैसा, right? Is it clear? Let us move forward. फोर्थ पार्ट 50 पैसा, राइट। 50 पैसा अगेन हमको रुपीज में कन्वर्ट करना है, सो इट विल बिकम ₹50/100। सो देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग दिस। आप चाहो तो सिर्फ ₹0.50 भी कह सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। और अगर आप चाहो तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करके यू कैन ऑल्सो राइट ₹0.5। ये दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, एग्जाम में आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों में से दोनों आंसर्स करेक्ट माने जाएंगे, राइट। सो दीज आर द 2 ऑप्शनल आंसर्स टाइप्स यू कैन से, एंड बोथ ऑफ देम आर करेक्ट आंसर्स, राइट। उसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फिफ्थ वन, 235 पैसे। अगेन 235/100, राइट। अब यहाँ पे हमारा डेसिमल यहाँ होता है, तो 2 प्लेसेस मूव करेगा, सो इट विल बिकम एज ₹2.35, राइट। अब आपको यहाँ पे प्लीज मेक अ नोट दैट इन एवरी क्वेश्चन, राइट, इन एवरी क्वेश्चन you have to write that 1 rupee is equals to 100 पैसा। मैंने हर पार्ट में नहीं लिखा है, लेकिन आपको हर पार्ट में जरूर लिखा है। मेक अ नोट ऑन दिस स्टार, इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू राइट 1 rupee is equals to 100 पैसे, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर्स इन मीटर एंड किलोमीटर। अब हमारे पास आया थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, मिलता जुलता उसी से है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये हमें पता ऑलरेडी, राइट। एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये 2 फैक्ट्स हमें ऑलरेडी पता है। आइए इन्हीं दोनों फैक्ट्स के हेल्प से हम ये वाला थर्ड के दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट इज 5 सेंटीमीटर इंटू मीटर, और हमें ये भी पता है कि चलो लेट्स सॉल्व। सो हमको करना है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डैश मीटर हमें ढूंढना है, एंड डैश किलोमीटर ढूंढना है, राइट। चलो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5/100 मीटर, राइट। तो ये बन जाएगा 0.05 मीटर। अगर हम बात करें 5 सेंटीमीटर इंटू किलोमीटर, अब हमको मीटर से रिलेशन पता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे मीटर से बना लेंगे। 0.05 मीटर is equals to 0.05 upon how much 1000 किलोमीटर। क्यों मैंने यहाँ पे ऐसे करा है, मैंने क्यों ये 0.05 को क्यों मैंने यहाँ पे किया, बिकॉज दीज टू आर सेम, राइट। सेंटीमीटर में करूँ उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, सो दीज आर सेम, सो नो नीड टू वरी, राइट। सो लेट अस गो अहेड। सो हमारा यहाँ पे हमारे को आंसर मिल जाएगा 0. अब देखो 3 जीरोस यहाँ पे हैं, पहले ये 3 जीरो एज इट इज आएंगी, उसके बाद एक जीरो ऑलरेडी थी, प्लस 5 किलोमीटर, राइट। तो ये दोनों आंसर्स हमारे पास इस वाले इसके आ गए हैं।
Let's move to the second part. 35 millimeter is equal to how many centimeter and how many kilometer. कैसे करेंगे? अगेन सेम टाइप. कैसे? हमें ये पता है कि 1 सेंटीमीटर is equals to, I will write it here. चलो लेट्स में 1 सेंटीमीटर is equals to 10 मिलीमीटर. ठीक है, ये पार्ट आप यहाँ भी लिख सकते हो. ये नोट है आपका, इस वाले थर्ड क्वेश्चन का ये नोट है. राइट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. दैट मीन्स 35. अब कैसे करेंगे हम? सो 35 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 35 अपॉन, ये बन जाएगा 3.5 सेंटीमीटर. सो दैट इज 3.5 अपॉन 100. राइट, ओके. अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम किलोमीटर्स में. राइट, इस वाला किलोमीटर का सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा? वही वाली बात आ जाएगी. 0.035 था मीटर में. राइट, सो इट विल बिकम 0.035 अपॉन डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हम कर रहे हैं किलोमीटर में. इट विल बिकम 3 जीरोस डिनोमिनेटर में है, वही 3 जीरोस हमने यहाँ लिखी, उस पर 035 किलोमीटर. तो एक आंसर आ गया हमारा किलोमीटर में यहाँ पे, और एक आंसर हमारा आ गया सेंटीमीटर में यहाँ पे. क्लियर है? बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ. प्लीज ध्यान से समझे कैसे हमें कन्वर्ट करना है. ये नोट्स को प्लीज स्टार बनाइए. ये स्लाइड स्टार है, तो इसमें मतलब है कि आपको एग्जाम में जरूर इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, चलिए जी बढ़े आगे. फोर्थ, एक्सप्रेस इन केजी. नाउ एज वी ऑल नो दैट केजी हमारी यूनिट किसकी? ग्राम से है. तो 1 केजी वी ऑल नो इट इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स. तो वही वाली बात आ गई, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे. बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे. देखिए कैसे करेंगे. सो 200 ग्राम्स is equals to 200 upon 1000 kg. 2 जीरो से 2 जीरो कट, सो दैट इज 2 को कोई 10 से कट नहीं करेगा. इट विल बिकम 0.2 kg. आप चाहते तो और एक आंसर और भी आ सकता है, 0.200 kg. सो बोथ द आंसर्स आर correct. It's only that cancelling which I have done. You will only cancel zeros with zero, but you will not cancel with any multiple. आइए सेकंड पार्ट देखते हैं. 3470 अपॉन 1000 kg. एक जीरो से एक जीरो कट, अभी भी कितनी बची है? 2. तो डेसिमल को यहाँ से उठाएंगे 1 and 2, सो इट विल बिकम 3.47 kg. राइट, आइए थर्ड पार्ट देखते हैं. इट सेज 4 kg प्लस 0.8 अपॉन 1000 kg. मैंने क्या करा? 8 ग्राम को कन्वर्ट कर लिया. देन इट इज 4 प्लस 0.008 kg. राइट, देन इट हैज बिकम 4.008 kg. राइट, इज इट क्लियर? Right, is it clear to all of you? Okay, let's move forward. Write the following decimals in the expanded form. अब जब हमको expanded form में लिखना है तो इसका मतलब है हम लोगों को इसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना है. अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, सो 20 को हम कैसे लिखेंगे? हाउ विल आई एक्सप्रेस एज 2 into 10 प्लस 0 प्लस डेसिमल क्या आते हैं? अपॉन 10 से स्टार्ट होता है, फिर अपॉन 100. राइट, सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. ओके, बढ़े नेक्स्ट में. ओके, कैसे करेंगे? 2.03. तो 2.03 मतलब कैसे? 2 into 10 नहीं होगा, 2 into 10 भी नहीं होगा, 2 into 0 भी नहीं होगा. तो क्या होगा? इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं?
इट विल बी रिमेनिंग 2 ओनली, राइट। फिर उसके बाद प्लस डेसिमल आ गया, डेसिमल के आते ही हम डिवाइड करने लग जाते हैं। सो इट इज 0 प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 3/100। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं कैसे करेंगे इसको। 200, so 2 into 100 plus 0 into 10 प्लस 0, कोई भी प्लेस वैल्यू आप छोड़ नहीं सकते, आपको सारी प्लेस वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, राइट। प्लस अब आ गया डेसिमल, सो 0/10 प्लस 3/100, इजी है। ओके, देन लेट्स कम टू द फोर्थ वन। कैसे करेंगे 2.034? 2.034, so 2 into 1 plus 0/10 plus 3/100 plus 4/1000, right? समझ आया कैसे होगा? Okay, let's move forward. Write the place value of 2 in the following decimal numbers. So कैसे करेंगे 2 point, सो कैसे करेंगे, अब हमें प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। प्लेस वैल्यू हम कैसे बताते हैं, डेसिमल के बाद आता है 10th, 100th, 1000th, ओके। उसके बाद लेट्स फाइंड, लेट्स 2.56। तो प्लेस वैल्यू हम 2 की कैसे लिखेंगे, देखिए क्लास, 2 की हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है, सो इट इज ऑब्वियसली इट इज एट द वंस प्लेस, सो इट इज 2 ओनली, राइट। अगर हम बात करें सेकंड की, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कितनी है, टेंस की प्लेस पे, तो हो जाएगा 10, 2 10s are 20। अभी हम यहाँ पे देखिए जी प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है फेस वैल्यू, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पे 0.2 आ रहा है, तो 2.2 मतलब 1/10, दैट इज 1/10, that is 0.2, or you can also say 2 into 1/10, cancel कर लो, so you get 1/5 as the place value of 2 in the third part. Let's come to the fourth one. ना 2 into hundreds की प्लेस पे है, so it has become 0.02, or you can also say 2 into 1/100, 2 ones are 2 50s are, so it is 1/50, right. Then we have fifth one, 63.352, 63.352, तो यहाँ पे 2 कहाँ पे है, 1000 की प्लेस पे, राइट, 1000 की प्लेस पे है, दैट मीन्स 0.002, और यू कैन ऑल्सो से 2 into 1/1000, 1s are 500 is equals to 1/500, right. All of you have understood, it is an important question, so please mark this also slide star as write the place value of 2 in the following decimal numbers, right. Let's move forward. Seventh question. Dinesh went from place A to B. दिनेश एक बच्चा है, वो place A to place B जाता है, and from there to place C. A is 7.5 kilometers from B and B, हम इसमें लेबलिंग लगाएंगे पहले, let's put the labeling. So A is यहाँ पे कितना है 7.5 किलोमीटर है, B to C 12.7 किलोमीटर है। आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस A से लेके प्लेस D तक वो जाना चाहता है, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C, पहले A से D जाता है फिर C जाता है। D is 9.3 kilometers from A, ठीक है, and C is 11.8 kilometers from D. Who traveled more and by how much?
अब कैसे निकालेंगे हम? दो बच्चे, एक है दिनेश और एक है आयुब, दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, ए बी प्लस बी सी, कैसे? 7.5 प्लस 12.7 किलोमीटर्स, सो once after adding it's 20.2 किलोमीटर्स, राइट। अगर हम बात करें आयुब की, तो आयुब में हमें मिलेगा, कैसे करेंगे? पहले वो जाता है ए से डी, ठीक है, फिर उसके बाद वो कहाँ जाता है? डी से जाता है सी पे, सो इट इज 9.3 प्लस 11.8 किलोमीटर। अभी कंपैरिजन करेंगे हम डेसिमल्स का, इट इज 21 पॉइंट किलोमीटर, सो इट्स क्लियरली एविडेंट दिस वन इज ग्रेटर, so we will say, so 20.2 is less than 21.1, therefore who traveled more? Ayub traveled more। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, बाय हाउ मच, तो हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 21.1 माइनस 20.2 which will be equal to 0.91 किलोमीटर। उसने हमसे पूछा किसने ज्यादा ट्रैवल करा, तो आयुब ने ट्रैवल ज्यादा करा, और कितने से ज्यादा ट्रैवल करा? 0.91 किलोमीटर से उसने ज्यादा ट्रैवल किया, राइट। बढ़े आगे। Coming to the second last question, Shama bought 5 kg 300 apples and 3 kg 250 mangoes. Sarla bought 4 kg 800 grams oranges and 4 kg 150 grams bananas. Who bought more foods? ठीक है, अब हम इसमें अगेन हम कंपैरिजन कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे श्यामा की और यहाँ पे हम बात करेंगे सरला की, राइट। आइए इन दोनों के कंपैरिजन कर लेते हैं इन लोगों का। तो श्यामा ने कितने खरीदे? लेट्स मार्क, एप्पल्स खरीदे 5 kg, 300 एप्पल्स को कन्वर्ट कर लेंगे हम सबसे पहले। लेट मी इरेज दिस, लेट मी राइट इन द कन्वर्टेड फॉर्म ओनली। सो एज वी ऑल नो द कन्वर्टेड फॉर्म, as we know that 1 kg is equals to 1000 grams, ठीक है, तो it will be 5.300 kg। कोई भी यूनिट्स लिखना नहीं भेजेगा। प्लस उसने क्या खरीदे? साथ में मैंगोज खरीदे थे, सो मैंगोज कितने खरीदे? 3.250 kg। जब इनको हम ऐड करेंगे, लेट्स सी, 0 plus 0 0, 0 plus 5 is 5, 3 plus 2 5, decimal point as it is, 5 plus 3 8। लेट्स कम टू सरला। सरला ने सबसे पहले क्या खरीदा था? ऑरेंजेस खरीदे और उसने खरीदे बनानास। सो ऑरेंजेस उसके आए 4.800 kg और बनानास आए उसके 4.150 kg, right? So 0 5 8 plus 1 is 9, 0.4 plus 4 is 8। So obviously हमारा कौन सा नंबर ज्यादा आ रहा है? हमारा ये वाला नंबर ज्यादा आ रहा है, राइट। सो therefore 8.550 में से is greater less than 8.950, right? So therefore who bought more foods? तो हमारे पास किसने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे? सरला ने, right? सरला bought more fruits than कौन? Than श्यामा। समझ आ गई? दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द टॉपिक लाइक डेसिमल्स, राइट। ओके, let's move forward to the last question for this exercise today. How much less is 28 kilometers than 42.6? जो भी than जैसा वर्ड आता है इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन करना, डिफरेंस निकालना। तो हम सबसे पहले than वाला सबसे पहले लिख लेते हैं, 42.6 किलोमीटर, यूनिट्स नहीं भूलोगे, एंड 28 किलोमीटर।
सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, सो इट विल बी 6 minus 0 is 6, decimal 2 minus 8 कुछ नहीं हो सकता, so I take a carry over and make it 12. So 12 minus 8 is 4 and 3 minus 2 is 1, right? So 14.6 kilometers is the answer for this 9th question, right? So we have completed with exercise 2.5. In the next video we will do exercise 2.6 and it will be towards your end, right? So thank you everybody for watching this video, and please check the description boxes for the links of the previous exercises also. If you have not done, please complete that and let's score good marks in our exam. You can also find us on Facebook as Learn Easy. Share this video with your friends and don't forget to subscribe the YouTube channel for more updates. Thank you.